Hello, viewers. I'm Yogita Sachdeva, and welcome to Stories That Shine from Divine Adore. Today we have Miss Divya Sani with us. So she will tell about herself. Hello, ma'am. How are you? Hi, Yogita. Lovely to be here with you today and wishing everyone a very happy Diwali in advance. Yes, May thank this, you so much. Diwali light up everyone's, life and prosperity. Good luck to everyone. Okay, thank you so much. I So, am, yeah. yeah, so tell me about yourself. Like, आपका ये what is mindfulness and LNP basically? Because हमारे viewers को maybe नहीं पता हो what exactly it is. So हम start करते हैं with your journey, how you have started and what is it exactly. So, firstly, I'm answering what is mindfulness and NLP. So, mindfulness basically it's a simple practice of living in the present, being fully present with your thoughts, your emotions, without any judgments. That is mindfulness. That you are present in today, in today's times. And NLP is a neuro linguistic program wherein we understand how our thoughts and language basically work. They shape our behavior, how they shape our behavior. And when mindfulness and NLP come together, so it brings us, like mindfulness brings you awareness, and NLP gets you the direction to work in the right on the right path. Okay. And coming to your second question, how my journey started. My journey started when I started teaching, kids, and I often saw parents struggling with things like screen time, tantrums, stubbornness, and beneath that, I somewhere sensed that there is a lot of frustration and guilt in the parents to really communicate to the kids. So Hmm. I started reading about the child behavior to help them better. But soon I realized that these challenges were, less about the child and more about the awareness and the emotions, how they are actually being put to the child, you know. Um, so that's where, NLP and mindfulness came to me, and as a learning tool and as a practice that, we should be able to give more clarity to the children, Okay. more values to the children, Hmm. and living mindfully with them. If we are giving the right values, we will be able to give them a better future. Okay. So this is basically helping in the parenting also. Yes, absolutely, it does, because in today's times, when parents are juggling so many things together, right? Mm-hmm. So we as women, especially, I would say that we over exhaust ourselves with too much on our shoulders. So Yeah. there is so much of burden, you juggling between everything, from work, family, kids, your own self. So somewhere we forget ourselves. So Hmm. and कहीं ना कहीं फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है या जो गुस्सा होता है, वो कभी कभी हमारे बच्चों पे निकलता है. सो Definitely. अगर हम माइंडफुली बिहेव करेंगे, तो जो बच्चा अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर सकता, हाउ वुड ही एक्सप्रेस? ही वुड बेसिकली बी मिररिंग व्हाट ही इज सीइंग, Hmm. राइट? सो Yeah. वंस इफ यू आर अ राइट मिरर, यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द चाइल्ड. अगर हम बच्चे से गुस्से में बात करेंगे, सो दैट इज व्हाट द चाइल्ड विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड, दैट दिस इज नॉर्मल. But if we are mindful in the way we behave, Hmm. the child would understand that. Yes, I remember with your things. मुझे याद आ रहा है कि when my daughter was in LKG, her teacher complained me कि वो hit करती है. तो आई हम्म. आस्क्ड हर टीचर कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो इसको समझाते हैं कि किसी को नहीं मारना चाहिए. एंड शी सेड आप Yeah. पहले खुद को तो हिट करना बंद करो, आप खुद उसको हिट करना बंद करो, देन शी विल लर्न कि हिट नहीं करना है. Exactly. So it's like, being mindfully present with your child also. जैसे हम, कहते हैं कि बच्चे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया. बट अगर हम खुद ही फोन लेकर बैठे हुए हैं या बच्चे हम्म. को पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं, यस. सो बच्चा भी इवेंचुअली फोन लेके या टीवी लेके बैठेगा ही. या. सो अगर हम उसको, माइंडफुली चीजें समझाएंगे, सिखाएंगे, हम्म. इट्स लाइक अ प्रैक्टिस. इट्स लाइक डूइंग डूइंग टूथब्रश. सो वो आप या. सिखाते हो ना, कि हमें ये हर रोज उठ के ब्रश करना है, या हमें हम्म. हैंड्स वॉश करने हैं, या कुछ भी करना है.
सो द सेम वे अगर हम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे, सो वो एक माइंडफुल प्रैक्टिस हम अपने बच्चे के दिमाग में इम्बाइब कर रहे हैं। सो जो हम सही हम्म। प्रैक्टिसेस इम्बाइब करेंगे वैसे ही हमारा बच्चा ग्रो करेगा। डेफिनेटली। एंड सो अगर ये जैसे हम एनएलपी है और माइंडफुलनेस है, इसका जो बेसिक कॉम्बिनेशन है, हाउ डज इट हेल्प द माइंड एंड हम्म। इमोशनल, मतलब उनको बैलेंस करने में हाउ डज इट हेल्प? सो देखो, माइंडफुलनेस होता है कि हम आज के टाइम पे प्रेजेंट में रह रहे हैं, राइट? ओके। बट कुछ जो चीजें हैं जो बैकवर्ड में पहले हो चुकी हैं, इट कुड बी हम्म। सम ट्रॉमा ऑफ द पेरेंट और सम जगलिंग टू मेनी थिंग्स। सो यू हैव टू रीवायर योर सेल्फ। सो आज एट द मोमेंट जो हम कर रहे हैं उसको हमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जब हम्म। हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो इवेंचुअली एक हैबिट बनेगी, राइट? तो ओके। उसे हम कहते हैं रीवायरिंग, जो हम एनएलपी के टूल्स एंड टेक्निक्स से करते हैं। कि जो आपका बैकलॉग है इन योर हम्म। ब्रेन, जो आप इतना, जैसे फॉर एग्जांपल हम दिवाली के टाइम पे डीक्लटर करते हैं अपने घर को, या। राइट? तो एक्स्ट्रा सामान है, निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। यस। सो बट इवेंचुअली हमारे को अपने जो ब्रेन में जो हम इतना सारा चीजें रखते हैं कि probably गुस्सा, एंगर, so many emotions that we हम्म। carry, we need to declutter that also. So that we can do with the help of NLP tools and techniques. और माइंडफुलनेस और एनएलपी जब इकट्ठे मिलते हैं, सो हम जब अपनी अभी की मोमेंट में अगर हम अच्छे से उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम्म। वो हमारा जो फ्यूचर है वो बेटर होता जाता है। यस। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बोलते तो बहुत लोगों को हैं, लाइक अगर मैं अभी बात करूं इन जनरल, तो हम बोलेंगे नहीं आप या टेंशन मत लो, आप अपने माइंड में पुरानी बातें मत रखो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, पॉजिटिव थिंग्स देखो। बट ऑन अ या पर्सनल लेवल इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं होता, जब हम उस सो स्टेज पे होते हैं, अगर हम खुद से करना चाहें तो नहीं होता, वी नीड समबडी। यस, सो देखिए, जैसे अब आजकल के टाइम पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रे रॉकिंग या कॉर्ड कटिंग। हम्म। ये कॉन्सेप्ट क्यों आए हैं? बेसिकली ग्रे रॉकिंग हो जाता है जहाँ पे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है, इंस्टेड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, इंस्टेड ऑफ एनी कन्फ्रंटेशन, आप उसको अपने अंदर रखते हो कि हम्म। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, इट इज गोइंग टू ऐड मोर। यू नो यस। सो हम उस आर्ग्यूमेंट से डर के अपने अंदर कितनी चीजें, इट्स लाइक अ डिजीज विच इज गोइंग इनसाइड। आप कितना अपने अंदर रख सकते हो? कहीं ना कहीं वो गुस्से में निकलेगा ही निकलेगा। यस। वो आपका कैसे निकालोगे या अपने ऊपर निकालोगे? सो हम्म। कहीं ना कहीं यू आर देन नॉट लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ, अ हैप्पी लाइफ। तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिस्कस इट आउट। आई प्रॉब्ली जो भी आपके आसपास में है, कई बार होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको अच्छा सजेस्ट कर पाते हैं हम्म। या आपके पेरेंट्स अच्छा सजेस्ट कर पाते हैं। बट इवेंचुअली जो आपको एक नॉन विदाउट जजिंग यू, जो आपको एक सजेशन दे सके या एक आपको पाथ दिखा सके, हम्म। आजकल के टाइम पे आई फील उसकी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। यस, एंड द इजी टारगेट फॉर अ मदर इज द चाइल्ड। यस, बिकॉज वो छोटा है और वो ज्यादा वो रिएक्ट आपको। नहीं कर सकता। तो हाँ। आपको लगता है कि इज द इजी वे आउट टू लेट इट आउट ऑन द चाइल्ड। बट समवेयर दैट चाइल्ड के लिए वो जो बिहेवियर आप उसको दिखा रहे हो वो नॉर्मल होता जाएगा। एंड हम्म। समवेयर बैक ऑफ द यस। माइंड दैट्स द गिल्ट दैट द मदर कैरीज, दैट इतना ही टाइम मुझे अपने बच्चे के साथ मिला आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, बट हम्म। उसमें भी मैंने उसको गुस्सा कर दिया। दैट गिल्ट, एंड फिर एंड अगेन कई लोगों का तरीका होता है गुस्सा निकाल के, और कई लोगों का तरीका होता है सॉरी बोल के कोई एक्सपेंसिव हम्म। गिफ्ट ले दिया। सो हम्म। या बट वो जो माइंडफुली अगर आप वो टाइम बेसिकली आप माइंडफुली अगर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो और उसको हम्म। वो चीज समझा पाओ। एंड हम्म। सबसे पहला ये है कि यू हैव टू ब्रिंग द चेंज विद इन योर सेल्फ। Within That's the first and foremost important thing. If you yes. will not change, the environment will not change. Will not So change. you have to consciously take that first step to change. Yeah. Okay. So, if we talk about stress and overthinking, how can we deal with it? With this mindfulness, is there any way to deal with stress and overthinking? So my go-to technique is, I start my day with a pause button. Okay. I don't start thinking that, oh, I have so many things to line up. Hmm. So if I have a schedule of, probably my meetings or whatever I have in the day, first is like 20 minutes, I have to have that gratitude that I am fully awake, I am there. Even if I'm having my coffee, I will have it
just sip my coffee. I will not think about the rest of the things. How would the meetings go? How do I have to send my kids to off, Hmm. school, or my husband to office, or what all chores and errands that I have to complete for the house? I don't think about all that. I just be in the moment, enjoy my coffee, see the sunrise, hear to the birds, chirping around. And that gives you a positive start to the day. I think that is very important. So Me instead time. of overburdening yourself, yeah, Yeah. that's the me time. Because अगर आप eventually देखो, वो हमारे को पूरे दिन में मिलता ही नहीं है. नहीं मिलता. चाहे हम ऑफिस जाएं, चाहे हम मीटिंग्स करें, चाहे हम जो या. भी, एवरीबडी हैज अ स्केड्यूल. एंड इनफैक्ट आई फील एक हाउसवाइफ के पास भी बहुत सारा काम होता है, wherein she हम्म. doesn't get time to actually do things what she likes, you know. इवन So I think that हाउसवाइफ्स आर 20% मोर बिजियर more देन अस. busy, more बिकॉज busier. उनसे जब भी बात So करो ना तो दे से कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, पूरा दिन कहाँ time निकल ही नहीं जाता होता. है. तब हम सोचते हैं Exactly. कि हमारे पास एक्स्ट्रा आवर्स हैं क्या, हम लोग घर भी मैनेज, वी Basically, आर yes. So मैनेजिंग द that's why I हाउस say that, ऑल्सो. yeah, so that's why I say that, give yourself time. Don't take the burden of the entire day. The day has हम्म. just started. Let it go slow. Eventually, जो जो आपके टास्क में दिन के काम हैं, आप eventually कर लोगे. और there is no guilt. अगर एक काम रह भी गया, तो कल हो हम्म. जाएगा. और So इवन we एट have द to look forward. एंड ऑफ द डे हम सोचते हैं अच्छा ये काम सब सब कुछ तो हो गया इजीली. वी वर सो मच Exactly. स्ट्रेस्ड आउट बट सब कुछ यस, हो गया. स्ट्रेस्ड आउट, बट वो अंदर बिल्टअप होता रहता है कि नहीं होगा, गलत हो जाएगा. हाँ. दैट सेल्फ डाउट इज ऑल्सो सो मच देयर इन टूडेज टाइम, दैट ओके बिफोर इवन स्टार्टिंग हमें लगता है कि नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे, या. विच इज नॉट राइट. हैव द फेथ, इफ यू आर इन अ सर्टेन पोजिशन, आई एम श्योर द सोल्यूशन यू विल फाइंड. यू नो या एटलीस्ट वी एक शुड बहुत ट्राई. सिंपल सा है कि अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, तो आप उसको फिक्स करवाओगे ही करवाओगे. सेम इज लाइक अदर थिंग्स. यू हैव टू माइंडफुली थिंक कि कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है कि उसका सोल्यूशन नहीं है. हम्म. और मुझे लगता है मैं भी थोड़ी सी ओवर थिंकर हूँ. ऐसा हो गया तो, ऐसा मतलब वो होता नहीं है बट हम होता सोचते नहीं है, रहते हैं बट हम ऐसा अपने हो गया दिमाग तो. में इतने सारी चीजें क्रिएट कर लेते हैं और उसका स्ट्रेस लेते रहते हैं. हम्म. सो दैट इज व्हाई द एनएलपी टेक्निक्स रियली बेसिकली हेल्प अस कि ओके, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, लेट दिस थॉट नॉट कम टू योर माइंड. बी प्रेजेंट. एंड अगर ये चीज, ये सिचुएशन, ये लोग, या एनीथिंग फॉर दैट मैटर, अगर ये हेल्प नहीं कर रहा है, जस्ट लीव इट एंड डोंट टेक द बर्डन की ये मेरी वजह से हुआ है. हम्म. Everything is not because of you. It could be या. because of the circumstances, or it could be because of any other thing. But I think we as women try to blame ourselves and carry too much कि हम उन चीजों का स्ट्रेस लेके अपने ऊपर हम्म. ही अपने आप को ही डिस्कम्फर्ट में डालते रहते हैं. यस डेफिनेटली. वो तो ऑलमोस्ट सभी विमेन के साथ, वेदर वर्किंग आउटसाइड और वर्किंग एट होम, सबके That साथ ही है. really needs to change, because that really needs to change now. या. ओके. सो व्हेन यू गेट एनी क्लाइंट, तो व्हाट Mhm. इज दिस मोस्ट कॉमन चैलेंज, को सबसे कॉमन चैलेंज आपके पास क्या आता है किसी क्लाइंट के साथ, अब कैसे, हाउ डू यू गाइड देम? So basically, I think overwhelm of emotions is one of the most common problem that I feel, ओके. that that everybody feels. People are constantly on feeling on. you know there is no peace truly. They are juggling work, family, expectations, and somewhere in between all this they forget themselves. जैसे मैं पहले भी बता रही थी, they feel disconnected with themselves. So that is one of the most common problem I feel that happens. So I think the only thing which I tell most of the mothers that come to me is that, just pause, take it easy. There is nothing that, you can't do. You have been juggling so many things. हम्म. And they say, they most of the people say, like, neurologistically also, that women have, have a brain to do multitasking. So it's okay. अगर हमने उस इतने सारे टास्क में अगर एक कम भी किया, it's okay. हम्म. इवेंचुअली वो भी हो जाता है. इट इज बट हम बेसिकली नॉट द ब्रेन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी यस, दैट वी कैरी. इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी कैरी कि नहीं, हमें ही करना है, इतने टाइम हम्म. फ्रेम में ही करना है. बट इट्स ओके, 15 मिनट लेट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा. थिंग्स कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल हाँ. समटाइम्स. बट बी पेशेंट, बी बी calm with yourself, be हम्म. take yourself positively. You can do a lot more. या. अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो आई थिंक हम और अच्छे से या और ज्यादा काम कर सकते हैं, rather देन Exactly. टेकिंग द थिंग्स Because नेगेटिवली. yes, yes.
Okay. So, if we talk about parenting, हम्म। तो how do mindfulness help the parents? बच्चों के साथ, like how they can connect calmly with the kids. So, so basically, parenting is very emotional, right? Because जहाँ बच्चों की बात आती है, emotions अपने आप आ जाते हैं. अच्छा. You can't be, disassociated there. So mindfulness basically help करता है that being present with your child. जब आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है, प्लीज अपने बच्चे को सुनो. हम्म. अगर आप सुनोगे तभी आप उसको उसकी राइट वैल्यूज बिलीव्स और सॉल्यूशंस भी बता पाओगे. Yes. बिकॉज बच्चा वही समझ रहा है जो आप उसको समझा रहे हो. He has less words to express. He has basically nil experience to give any input to it, हम्म. right? आप ही का एक्सपीरियंस है, आप ही के वैल्यूज हैं जो आपने आगे देने हैं. सो बीइंग माइंडफुली प्रेजेंट विद योर चाइल्ड, लिसन टू व्हाट योर चाइल्ड इज सेइंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म. आप उस टाइम पे फोन पे बात कर रहे हो, काम का ऑफिस का काम कर रहे हो, या यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, और probably you are on the phone doing anything. So just, I think 15, 20 minutes, even if you give to your child, just exclusively them being there with them, fully present, हम्म. will make all the difference. या एंड आई थिंक इवेंचुअली अगर आप नहीं सुनते हो ना, तो इवेंचुअली ही विल स्टॉप टॉकिंग और टेलिंग हिज इमोशंस और एनीथिंग. लाइक ही विल स्टॉप शेयरिंग एनीथिंग. Stop sharing. हाँ, So क्योंकि उसको basically, लगेगा तभी कि trust, connection. हम्म, मतलब ही विल हाँ, तो फील वो लाइक ट्रस्ट कि कनेक्शन तभी आएगा, सुनते तो है वो नहीं. शेयर तभी करेगा जब उसको लगेगा कि आप उसकी बात पूरी तरह से सुन रहे हो. So this is also important to listen carefully your child. यस. बिकॉज एक्सप्रेस तो हम वैसे ही करेंगे ना. अगर हम गुस्से से बात करेंगे तो वो भी उसको लगेगा कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट मोमेंट टू शेयर. सो हम्म. देन द चाइल्ड विल ऑल्सो स्टार्ट विदड्रॉइंग फ्रॉम यू, राइट? या. बिकॉज ही वुड सी दैट यू आर ऑलवेज बिजी विद सो मेनी अदर थिंग्स. हम्म. सो बच्चे को पूरा टाइम देना इज इक्वली इम्पोर्टेंट. बिकॉज अगर आप ऑफिस से आ रही हो, या अगर आपके पास घर के भी काम है, सो हम्म. ऑब्वियसली यू आर मल्टी टास्किंग देयर. But those 20 minutes for the child are very important to know, या. what he did in the, in the entire day. What did they learn? So अगर वो शेयर ही नहीं कर पाएगा, तो वो कनेक्शन, वो बॉन्ड कभी बन ही नहीं पाएगा. नहीं. एग्जैक्टली. ओके. तो हाउ कैन वी यूज एलएनपी एनएलपी विद आवर किड्स? So, so the first and foremost is कि making them understand कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है, या हम्म. कुछ भी होता है, इट्स अ हम्म. वेरी बेसिक एग्जांपल. हम्म. So it's nothing is permanent, right? So we can always say that don't take anything to the heart. हम्म. It's not the end of the world. You या. will keep meeting new people. So apne, keep yourself open to the new experiences, to the new people that you meet, and keep learning with it. So कुछ आपको अच्छी चीजें सिखा जाते हैं, कुछ आपको नॉर्मल चीजें सिखाते हैं. सो वो बच्चे को डिफरेंशिएट करना बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, एंड माइंडफुली अपने डिसीजंस खुद लेना. आप उसको सिखाओ कि एक बार गलती करेंगे, दो बार गलती करेंगे, बट हम्म. इवेंचुअली उसमें वो ट्रस्ट बिल्ड करना दैट ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस. बिकॉज इवेंचुअली आजकल के टाइम पे वेर इन द स्क्रीन टाइम एंड द टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल टू द चिल्ड्रन, या. इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि अगर हम उसको राइट टाइम पे गाइड नहीं करते रहेंगे विद आवर ओन एग्जाम्पल्स, द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू लर्न इट. और इट्स लाइक बिकॉज देर इज एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन टूडेज टाइम्स. या. सो हमें नहीं पता कि बच्चा क्या सीख रहा है. अगर हम एग्जैक्टली. राइट टाइम पे एज अप्रोप्रिएट चीजें बच्चों को बताते रहेंगे, सो आई थिंक दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन ब्रिंगिंग अप the child with good value system and good beliefs, and most importantly trusting themselves, which is very very important. Yeah. It will build the confidence in the child. Yes. And then they can, they will be able to take their decisions on their own, and they Yes. will be strong about it. They will be able to weigh the pros and cons of everything. And that is very important because, eventually the child has to move out of the nest. They Yes. have to learn to fly. So Hmm. अगर वो गलती करते भी हैं, so it's okay. हाँ, You they will know, learn. they will learn eventually. Yeah, they will learn. Everybody learns. और हर एक्सपीरियंस पहली बार पहला ही होता है. और उनको ये भी पता चलेगा कि अगर उन्होंने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है, हाउ टू मेक इट राइट. यस, उसके रेपरकशंस क्या रहे.
यस। उनको क्या सेटबैक लगा उस चीज से, या क्या हम्म। उनको अच्छा नहीं लगा, और प्रोबेबली अगर वो डिसीजन सही गया तो उनको उन्होंने क्या सोच के लिया था। दैट थॉट वैल्यू विल ऑल्सो इम्बाइब इन देम एंड दे विल थिंक कि हाँ ये हमने अच्छा किया। सो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उनके अंदर। सो जो दैट्स हाउ इट उनके हेल्प्स। लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए इट विल लॉन्ग बी रन में गुड। इट, यस, या। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके। कैन यू गिव एनी रियल लाइफ एग्जांपल, लाइक आपका कोई क्लाइंट हो जिसको ये सब चीजें हेल्प की हो, माइंडफुलनेस एंड एनएलपी? So real life, okay. So one of the very memorable example that I have is so there's this lady who used to feel very disconnected with her child. She ओके। barely was there. So वो उनका ये रहता था, before even listening she used to react. ओके। So and even in otherwise she used to feel that I'm doing so much, nobody helps me. So I used to the same way that pause yourself for a little while and see what is happening around. So first and foremost यही रहता है that uh, if you have extra thoughts in your mind, start writing. Make a journal for yourself. Whatever you want, probably of your thoughts. So journaling can be in many ways. You can write your thoughts. You can write the negatives, that something you did not like in a day, and then you can start working on it. कि भाई ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी. I have to work on this. ओके। और सो दैट वेज आई थिंक एक ये चीज रहता है जहाँ पे पीपल फील ओवरवेल्म्ड विद द इमोशंस दैट आर कमिंग इन, एंड उनका सबसे बड़ा गिल्ट ये रहता था कि मैं अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ, देयर इज अ लॉन्ग ब्रिज बिटवीन देम. So there, I started telling her that you should spend more time, and more time just being with the child, not doing anything else. Probably even if you're watching a movie together, but make it entertaining. See how what did he learn from the you know आजकल if you're watching a cartoon or anything, अगर हम रामायण की कोई स्टोरी देखते हैं, so what has the learning been, how has it been? So हम्म। that is very important. So उनको यही सिखाया that आप mindfully अपना डे स्टार्ट करो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड कीप योर सेल्फ काम. डोंट रिएक्ट, बिकॉज हम क्या करते हैं, बात सुनने से पहले ही रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, या बिना समझे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी वांट टू गिव एन आंसर. सो हम्म। डोंट डू दैट, एंड डोंट जज एनीवन, बिकॉज बच्चे तो वही पुट रिफ्लेक्ट करेंगे जो आप उनको दिखा रहे हो. दैट। So that is one thing which I feel is important. ओके, दैट्स ग्रेट। सो उनका फिर अपने बच्चे से बॉन्ड अच्छा हुआ? Yeah, so I have taken a few sessions with her. So ओके। the things have started improving with her, because now she started spending more time taking him to the park and playing around. जो पहले वो उस टाइम में अपने घर के कामों में और ऑफिस के कामों में she used to be busy, and हम्म। then she used to feel that because उनके पास टाइम नहीं होता, so she used to not really give her entire attention to the child. So that has eventually been changing now, and ओके, I think more importantly, the journaling has really helped her. दैट्स ग्रेट। सो Writing your emotions हम्म। is really helps. ओके, तो इट कैन बी हेल्पफुल विद द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आल्सो। यस, अगर आप अच्छे से इट्स लाइक एक जने का अगर मूड खराब है तो पूरे घर का मूड खराब हो जाता है. हम्म। अगर बच्चा रो रहा होता है तो सारे उसको चुप कराने में लग जाते हैं. ट्रू। सो द सेम वे, अगर आपका मूड खराब है तो कहीं ना कहीं वो सबका इम्पैक्ट करता ही करता है. बट एज द लेडी ऑफ द हाउस, एज द वुमन, इफ यू आर डूइंग वेल एंड यू आर हैप्पी, सो कहीं ना कहीं वो सब चीजों में इम्पैक्ट करेगा. हाँ, दैट फ्रीक्वेंसी, That लाइक। frequency, that vibration, या। thinking more about the, what you're giving is what is going to come back eventually. It's like the law of the लॉ nature. ऑफ कि अट्रैक्शन। जो आप दो रहे हो वही आपको वापस आएगा. यस। आप if you will spread positivity, happiness, so वही वापस आएगा. तो बेसिक तो वही रह जाता है सब चीजों का, बट हम वो हम्म। करते कैसे हैं, इवेंचुअली कब रियलाइज करते हैं, उसका फर्क आ जाता है. हाँ, तो वही आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वी कैन नॉट डू इट ऑन आवर ओन लेवल। बहुत या बार ऐसा होता है या कि दैट इज हमें लगता ही नहीं है कि वी आर स्ट्रेस्ड आउट, हमें लगता ही नहीं है कि एनजाइटी है। हम सोचते हैं दिस इज द नॉर्मल लाइफ, दिस इज द नॉर्मल थिंकिंग जो हमारे साथ चल रही है। एंड एट दैट टाइम वी नीड समबडी जो हमें इन सब चीजों या से बाहर निकाले। हाँ, बिकॉज इवेंचुअली आप विदाउट जजमेंट आप किसी के पास अगर आप जाना चाहते हो, सो वो आपको एक कोई गाइडेड पर्सन ही बता पाएगा कि एग्जैक्टली हम्म। क्या है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम अपने ट्रूली सारे इमोशंस
सबको बताना नहीं चाहते। सो अगर कोई हम्म। थर्ड पार्टी होती है या कोई ऐसा होता है, तो देन इट इज इजियर फॉर अस टू डिस्कस विदाउट एनी जजमेंट्स। इनिशियली आई वुड से कि काफी बार लोग ऊपर की बात बताते हैं, नीचे जो हम्म। डीप डिगिंग प्रॉब्लम होती है, दे ऑल्सो हेजिटेट टू यस। टेल यू। But eventually, once you are with them in a conversation, so you have to ask questions. You have to ask, कि, क्या और क्या, what else हम्म। is troubling you? What else is, happening? So, probably, जैसे इस वाले केस में जो वहाँ पे I was telling you that the mother हम्म। didn't have a very great relationship with the child. हम्म। But कहीं ना कहीं, because, office में she was, constantly being uh, uh, had a lot of pressure from the office, bosses का pressure, deadlines का pressure, and घर आकर भी there was no much of support. So getting that support from the partner is also equally important. या। अगर आप नहीं हो तो आपका पार्टनर है, हम्म। and that also really makes a lot of difference. So अगर दोनों ही available नहीं है एक दूसरे के लिए भी, that also leads to some kind of a build up inside, you know. So उसको overcome करने के लिए, you will have to talk. एंड इवेंचुअली अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मैं अपने अंदर रखूंगी रखूंगी और आई एम सेविंग फ्रॉम द कन्फ्रंटेशन, वो आपके अंदर बिल्डअप हो रहा है और वो आपका गुस्सा बनेगा, दैट विल लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। एंड कहीं ना कहीं फिर वो आपकी पूरी लाइफ को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, बट आपके अदर फैमिली मेंबर्स को भी इम्पैक्ट करेगा। और सबसे ज्यादा बच्चों को, बिकॉज सबसे ज्यादा बच्चों को। किड्स यस, नीड मोर। बिकॉज वो आप ही को देख के सीख रहे हैं, हम्म। उनका जो वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन है वो आपके थ्रू है। आप उनको क्या नॉर्मल दे रहे हो, वही नॉर्मल उनके लिए नॉर्मल बनता चला जाएगा। या। अगर उनके लिए घर पे लड़ाई झगड़ा इज अ नॉर्मल थिंग, दैट इज गोइंग टू बिकम नॉर्मल फॉर देम। अगर आप अ लॉट ऑफ मदर्स से दैट मैं तो थप्पड़ मार दिया या गुस्सा आ गया, बट देन इवन इन टीचिंग आई वुड से दैट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम अगर हम बच्चे को मार मार के पढ़ा भी देंगे, सो वो इवेंचुअली उसके लिए इट्स अ काउंट फॉर द चाइल्ड कि मम्मा 4 थप्पड़ के बाद शांत हो जाएगी। हाँ। सो दैट इज लाइक दैट हैज बिकम नॉर्मल फॉर द चाइल्ड कि हाँ। मॉम का गुस्सा निकालने का तरीका यही है। सो आफ्टर 4 slaps इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल, you know so that's the kind of but that's not the upbringing we should be giving, या। right? Because kahin na kahin all this is leading to the trauma in the child, तो kahin उसके na kahin माइंड wo में ek यही रहेगा साथ, कि उसके दिमाग में सॉल्यूशन एक नहीं है साथ। तो, लाइक सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये रहेगा कि सॉल्यूशन नहीं है तो थप्पड़ मार दो, या कोई आगे बोल रहा है तो एग्जैक्टली। थप्पड़ मार दो। एंड हाँ, सो इवेंचुअली वो भी अपना गुस्सा अपने फ्रेंड्स पे, जैसे आपने बोला कि हम्म। योर चाइल्ड डिड दैट, सो कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा और उसको यही लगेगा दैट गुस्सा निकालने का यही तरीका है तरीका। कि मुझे थप्पड़ पड़ता है, मैंने आगे किसी को मार दिया। अब वो मारने की इंटेंसिटी क्या रहेगी, तो वो तो हमें भी नहीं पता। हाँ। सो वो कहाँ पे निकलेगा। सो इट्स लाइक अगर हम माइंडफुली अपना डेली का ये सब कुछ करेंगे, इट्स बेसिकली यू हैव टू रीसेट योर सेल्फ अपने हम्म। कॉन्शियस में, अपने सबकॉन्शियस में, कि ये नहीं करना है। जैसे हमें पता है कि अगर स्पीड लिमिट 70 है तो हम 100 पे नहीं चलाते हैं। या। सो द सेम वे हम्म। हमें कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये सोच लेना है कि ये चीज नहीं करनी है, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गोइंग टू एड एनीथिंग टू द चाइल्ड, इट इज ओनली बी एडिंग टू द ट्रॉमा एंड अ स्कार। कि ठीक है, हमारे टाइम पे मैंने भी तो खाया है, सो हम्म। मैं ये कर सकता हूँ। सो दैट्स समथिंग विच यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट। तो वो हम्म। हम बेसिकली बीइंग प्रेजेंट में जो हम कहते हैं कि माइंडफुलनेस में, वो हम यही कहते हैं कि evaluate what you are doing. या। You just can't respond to things at the heat of the moment. आपका ऑफिस का गुस्सा है बट आप घर आके उसको नहीं निकाल सकते, या आपका घर पे कोई काम पूरा नहीं हुआ आप उसको अपने बच्चे पे या अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स पे नहीं निकाल सकते। सो वी डेफिनेटली। हैव टू बी वेरी माइंडफुल, वी हैव टू बी काम, वी हैव टू हैव अ डीपर क्लैरिटी, तभी हम कॉन्शियस लिविंग कर पाएंगे। एंड दैट विल लीड टू द लास्टिंग सक्सेस ऑफ एवरीवन, आपके लिए भी। बिकॉज अगर हम्म। आप पॉजिटिवली अपने आप को देखोगे, तभी आपको वो आपकी ऑरा में आएगा, यस। कि आई एम हैप्पी अबाउट माई सेल्फ। हम्म। अगर मैं ही अपने आप में सेल्फ डाउट लेके बैठी रहूंगी कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हो पाता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वही बच्चा भी सीखेगा। बिकॉज बच्चे को यही लगेगा कि अरे मॉम को नहीं आता तो मुझे भी नहीं आता, बिकॉज हम्म। उसको सिखाने वाले तो इवेंचुअली आप ही हो। दैट्स ट्रू।
दैट्स ट्रू विद मी ऑल्सो। लाइक मेरे बच्चे मुझे देख के सीखते हैं कि इफ ममा कैन डू हाँ ऑल सो दीज थिंग्स वी कैन ऑल्सो डू। यस एग्जैक्टली लाइक यू, मतलब जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू ऑल्सो. सो यू आर मल्टीटास्किंग सो मेनी थिंग्स, right? So you are a good example in yourself, with such a so much of positivity जो आप काम कर रहे हो, with a smile all throughout. Kids वही देख के रिफ्लेक्ट करेंगे कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, और यस। हार्ड वर्क में अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो मम्मा सॉल्यूशंस ढूंढ लेती है. So that way they will see that yes, if mom can do it, mom will find solutions to our problem also. And Yes. with the kind of warm smile that you are doing all this the entire day, hats off to you also. Thank you so much. Thank you so much. Mhm. It is something given by God, gifted by God. It is not me. Exactly. It So is some so extreme that's what power that is doing all this, that exactly. making So me do यही है all these basically. things. So basically, yeah, having gratitude, being grateful to the today that we have got. By God's grace, हम बैठे हैं, we have all these facilities available, and we are able to provide to our children. They should also learn the value of it, because nothing Yeah. is coming, without hard work. So ये gratitude रखना, being grateful to God is also a very good value that, as parents, we should be imbibing in our children. Yes, definitely. And tell me one more thing. The time we are running short of the time also. So the last thing is, what you give to the parents, like what mindful habit you want to give to the parents for their children, जो उनको अपनी लाइफ में लानी चाहिए. Mindful habit. So life gets very hectic, right? Life is very hectic. Otherwise, also there is a lot that is happening. So I think you should be with yourself. Whatever time you are spending with yourself, with your family, with your children, with your friends, whatever. Be there. Be there without thinking, without any judgments. Be there. Enjoy the moment, even if it is Without going out phone. for a coffee with your. Yes, Without because phone. हम यस सो बस उस टाइम मोमेंट को एंजॉय करो, एंड डोंट थिंक कि कौन हमें जज कर रहा है, क्या कोई क्या कर रहा है, या मेरे ये काम रहते हैं. जस्ट बी इन द मोमेंट. अगर आप डिनर पे जा रहे हो तो एंजॉय द डिनर. Hmm. अगर आप कॉफी पे जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो विद योर चाइल्ड, और गोइंग टेकिंग योर चाइल्ड टू द पार्क, बी फुल्ली प्रेजेंट विद द चाइल्ड. दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट important and the key thing that you can take for Yeah, that with is you. the need of the hour also. That is the need of the hour, because हम भागते ही रहते हैं. There is no pause button for us, so it's okay to pause for a little while. ये तो मेरे लिए भी है, बिकॉज इफ वी आर गोइंग आउट ऑल्सो तब भी मैं अपने फोन में किसी का मैसेज आया उसको रिप्लाई करना है, बिकॉज मैनी So you थिंग्स आर should make देयर. it a rule कि जब डिनर पे जा रहे हैं तो सब अपना फोन साइलेंट घर मोड पे पे छोड़ के करके जाओ. रखेंगे. घर पे छोड़ के हाँ, जाओ. बेस्ट है घर पे छोड़ के जाओ, नहीं तो फिर साइलेंट मोड पे रखो. या. बिकॉज अदरवाइज यही चलता रहता है कि एंड देन फिर वही बच्चे भी करते हैं. बच्चे भी सीखते हैं. बिकॉज बच्चे भी वही करते हैं कि खाना हमारे साथ खा रहे हैं, लेकिन बात वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं कर रहे हैं. दैट आई विल नोट इट डाउन एंड पुट ऑन माई वॉल कि सब उसको देखें. सो दिस इज द या बेस्ट टिप यू हैव गिवन टू अस एंड टू आवर व्यूअर्स. या अभी किसी को आपको कनेक्ट करना हो तो हाउ वी कैन कनेक्ट यू. So I am glad to be here, first of all. And if you resonate with what I have said, Yogita will be sharing the Instagram handle with you, and it will pop up in the bottom also, I think. So आप उस पे connect कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, and you can always connect for a WhatsApp. And I am taking few, clarity calls for the beginners, and we can connect at that. ओके, दैट इज रियली गुड. Mm. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हेयर. इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला. आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है. सो विल डेफिनेटली कीप ऑल द थिंग्स इन आवर माइंड जो जो आपने हमें बताया, एंड वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू. Thank you so much, Yogita. It was lovely being with you. And personally, also, knowing you was a wonderful experience. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Bye bye.